You are very nervous at a time. Okay, don't worry. At a time, my heart beating, heart Your heart. Okay, not. you are afraid from the speaking. Are you in the frame? So are you excited, guys? Are you ready to going to learn how to learn public speaking? Right? You have the knowledge how to speak, you have the knowledge what to speak, but you don't have any confidence how to speak front of the peoples. Right? And public speaking is the part of your life each and everywhere. Suppose that you wanna go anywhere, you need to develop your public speaking skills. You have the communication skills. You have the communication skill in the sense, suppose that you have the ability to one. First thing is that you try to improve your skills when you talking to someone, only the single one. It means you need to develop your expertise when you talking to someone. This your one-to-one conversation. After then, your group conversation. Suppose that you have the 5 to 6 friends and you have some thoughts, then you able to express your thoughts. Got it? Third thing, your public speaking skills. Public speaking skills, you have chance to express your all thoughts, express your presentation, express your product, your company, each and everything. Suppose that you wanna go in any field, you wanna go for crack the interview, you wanna go for start your business, you wanna go for part of any working areas. So you need to develop your public speaking skills. Right now, the trending topic is the resume writing. Do you know how to write the resume? And this is the old fashion. Any company, suppose that in 21st century, any company, no need to the CV and resume. They need the 1 minute video. Why? And also the part of interview, suppose that interviewer asks you the question, how to introduce yourself? Please introduce yourself. If you don't know how to introduce yourself, so it means you will fail in the interview. But one point is remember, and this is very important point. Suppose that interviewer has your CV in the hand of interviewer. So each and every information about you, about your qualification, about your family background, about your address, about your contact number, about your achievement, experience, everything you have already mentioned in your CV. But why the interviewer asks you the question, introduce yourself? This is the major questions. Why? Because they want to know what is your confidence, what is your body language, what is your behavior to react any questions, to react any situations. So this is the way you have to improve your public speaking skills. How to express yourself, how to express your thoughts front of the peoples, how to react. So this is the major thing you have to develop, right? And English is just a language. इंग्लिश एक भाषा है, अब इसका बोलने से कोई मतलब नहीं है. Suppose that if I give you the topic, you don't know about the topic, and you have chance to speak in Hindi. It is possible you can speak? No, it is not possible. The reason behind that, the knowledge. कि नॉलेज ही नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप नहीं बोल पाएंगे. लैंग्वेज इज जस्ट ए बैरियर. अगर आपको नॉलेज है तो लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा बैरियर नहीं है. सबसे बड़ी चीज क्या है जो आपको करनी है? वो करनी है आपको पब्लिक स्पीकिंग में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है. कॉन्फिडेंस क्या करना है? हाथ ऐसे करिए, बूस्ट करना है. अपने आप से कितने क्वेश्चन पूछने हैं? 3 क्वेश्चन पूछने हैं. कितने पूछने हैं? 3 क्वेश्चन पूछने हैं. कौन कौन से? अभी कहाँ हो? ऐसे करिए, अभी कहाँ हो? अभी कहाँ हो? स्पीक लाउडली. अभी कहाँ हो? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे? वेयर यू नाउ? वेयर वांट टू गो? हाउ विल यू गो? ये अपने आप से पूछने हैं आपको, जिसके 2 के आंसर आप खुद बनाएंगे, तीसरे का आंसर आप पूछ लेंगे अपने मेंटर, अपने कोच से. मेरे से आप पूछ सकते हैं आप कैसे जाएंगे,
अभी कहाँ हो, व्हाट इज योर लेवल राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि अभी आप किस लेवल पे हो। आप 2 लोगों के सामने अच्छे से बोल पाते हैं, आप 100 लोगों के सामने अच्छे से बोल पाते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक हुक लगता है। हुक समझते हो, जैसे हुक नहीं लगता, जैसे कपड़े में भी हुक होता है ना, कहीं भी हुक लगा देते हैं आप, जो कैंटी उसे हुक बोलते हैं। तो ऐसे आपकी पब्लिक स्पीकिंग में और आपकी बोलने के लिए एक हुक लगता है। कब, जब इनिशियल पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं प्रेजेंटेशन के? 3 पार्ट होते हैं, ओपनिंग पार्ट, क्लोजिंग पार्ट और मिड पार्ट, योर मेजर बॉडी। तो मेजर बॉडी में आपको नॉलेज देनी है, लेकिन ओपनिंग पार्ट में आपको अटेंशन ग्रैब करनी है। ऑडियंस की अटेंशन अगर ग्रैब करेंगे तो जाके आपकी ऑडियंस आपको क्या करेगी, एंटरटेन करेगी। आपकी ऑडियंस कभी नहीं चाहेगी कि आप बेकार बोलें। आपकी ऑडियंस कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि आप कहीं स्पीकर हैं, आप बोलना चाहते हैं, तो आपकी ऑडियंस चाहते हैं कि आप अच्छा बोलें, क्योंकि वो अपना समय निकाल के आपको सुन रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब पे ऑडियंस है, वो आपको सुन रही हैं, तो वो चाहेगी कि आप अच्छा बोलें, आप अच्छा कंटेंट उन्हें डिलीवर करें, ताकि उन्हें फायदा हो सके। ठीक है, लेकिन एक पर्सन ऐसा होता है जो आपको डिमोटिवेट करता है। डू यू नो हु? डू यू नो हु? ओनली यू। यू आर द पर्सन हु एक्चुअली डिमोटिवेट बाय योरसेल्फ। अपने आप से ही आप क्रिटिसाइज होते हैं, अपने आप से आपके अंदर फीलिंग आती है कि नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो या मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसी फीलिंग आपको खुद से आती है। दूसरे लोगों को आप पे ट्रस्ट है, बिकॉज यू आर द यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। डू यू नो वाई? हैव यू एवर सीन द सेम पर्सन इन दिस वर्ल्ड right now? What is your age? I don't know, doesn't matter, but in this age, have you ever find out the same person? Aarti, do you find the same Aarti? No. इसका मतलब आप यूनिक हैं, भगवान ने आपको यूनिक बनाया, तो उस यूनिकनेस को पहचानिए, उस यूनिकनेस को आप लेके आइए। आपके पास अल्टीमेट पोटेंशियल है, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। यू कैन मूव एनीवेयर विद एक्शन, विद योर डेडिकेशन। तो आपको अपनी डेडिकेशन के साथ चीज़ों को परफॉर्म करना है। अब पब्लिक स्पीकिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बिल्कुल जाएंगे और एकदम से परफेक्ट बोलेंगे। नो, फर्स्ट दिस इज योर लर्निंग स्टेज, यू हैव टू लर्न, you have to motivate to yourself first. Don't try to motivate anyone, but first you should try to motivate to yourself. And a motivation is external factor. If you want to develop your internal motivation, think about your reward, think about your fear. क्योंकि 2 चीज़ों की वजह से आप क्या सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे। या तो बहुत बड़ा फियर है, डर है, आपकी जॉब जाने वाली है, या कुछ भी आपका बिजनेस में नुकसान होने वाला है ना। कुछ ऐसा फियर है जिसकी वजह से आपका हो सकता है रेस्पेक्ट हो। कुछ लोगों को रेस्पेक्ट के लिए इंग्लिश सीखते हैं कि यार सोशल में हम बोल नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे से इंग्लिश में बात करते हैं, फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, तो आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो वो क्या फैक्टर है? वो फैक्टर है डियर आपका रेस्पेक्ट का, मतलब रिवॉर्ड मिलना है आपको। फियर है आपको कि यार मेरी इंसल्ट ना हो जाए, तो उस फियर को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं। दूसरा, वो तो फियर है, एक रिवॉर्ड है। सीखने के बाद आपका करियर बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड होने वाला है, तो वहां भी आप क्या करेंगे, उसके लिए भी क्या है, आपका रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। आपका गैप जो है, सपोज करो आपने क्या किया कि अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीख जाते हैं, आपका जो इंक्रीमेंट है वो 3 टाइम्स होने वाला है। आपके बिजनेस में जो ग्रोथ है वो 10 टाइम्स होने वाली है। कि आपको 1 लाख का काम करना है लेकिन 10 लाख मिलने वाले हैं, तो वो बड़ा रिवॉर्ड है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, तभी आप अपना पब्लिक स्पीकिंग पार्ट को कवर कर सकते हैं। कैसे करना है उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। एक मॉडल है आई डू यू शी मॉडल। कौन सा मॉडल है? आई डू, आई डू यू सी मॉडल। आई डू यू सी, मैं करूंगा आप देखेंगे। आई डू यू सी, आफ्टर देन यू डू आई सी। आप करेंगे, मैं देखूं। तो ये मॉडल रिपीट चलता है, आई डू यू सी, यू डू आई सी, रिपीट एट ए टाइम। जोर से रिपीट करिए, आई डू यू सी, यू डू आई सी।
सिंपल ये मॉडल फॉलो करेंगे हम